Hi everyone, my name is Vageshwari. I'm a research scholar at Jamia Millia Islamia and I'm a supporter of Smart Shiksha. This webinar is powered by Speaker platform of Smart Shiksha. It provides technology driven solutions to the day to day challenges faced by teachers, students, and researchers. Today we have Mr. Ashu Mishra. He's an assistant professor at Cluster Innovation Center, University of Delhi. We have Ms. Sharmishta Atreja, Assistant Professor at Department of Philosophy, University of Delhi, and Ms. Nidhi Bindal, Assistant Professor Design at Pearl Academy. Thanks for taking out time this morning to discuss about online examination, its challenges and possible solutions. I, on behalf of Smart Siksha, welcome you all to the discussion on online examinations. आज हम यहाँ हैं क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एजुकेशन और एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन से जुड़े हैं and amidst this current scenario we are forced to move to virtual learning from the physical sites. In fact, I read an article where it was mentioned that analysts are saying online education is going to be a game changer considering that social distancing norm is going to be there for a very very long time now. पर दूसरे हाथ में हम लोग ने पिछले हफ्ते देखा ट्विटर वाज ट्रेंडिंग विद हैशटैग्स लाइक टीओ अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जाम्स एंड एजुकेशन विदाउट इंक्लूजन जहां स्टूडेंट्स ने अपना एक डर जताया था कुछ लोगों ने बताया स्टूडेंट्स अलग अलग जगह फंसे हैं दे सेड फ्लेक्सिबल ऑप्शन जरूरी हैं ऐसे सिचुएशन में but then UGC came up with a very clear statement saying कि अब open book examinations will be the step forward. At this point बहुत clearly describe होता है कि problems तो हैं. If I could start by asking you, Sharmishta ma'am, what are the major concerns of online examinations according to you? Thanks, Vageshwari, for putting this up, and Smart Siksha for setting this platform. Some of us who are there on the panel, and for many of us who are connected through the channel. So, yes, now that we've come to a consolidated conclusion of having open book examination, I think let's move a little backwards and see um, what all problems did we have in. I'll not get into the specific details, but we did have problems while taking classes and while taking online classes also. So first and foremost, of course, we being in Delhi also, we realized that we don't have stable internet connections. So in this scenario, how can we imagine uh, students coming from remote areas and who, by if I talk about government institutes, education institutes, we had to send the students back home, and that was the demand of the situation. Now, in this scenario, can we imagine with the varied population that we have and the and with the socio-economic varied socio-economic background, how can we imagine everybody to be on an equal platform and to have all the facilities that we do here sitting in metropolitan cities? I mean, also face a lot of problems, so we, we really cannot imagine India to have um, equal at least digital platforms right now, right? So I think moving from here, we really need to see what are the problems at hand given all these situations to have a sustainability with regard to online classes and evaluation both. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts. In fact, we collected a few questions as well from people, from teachers actually. What are they facing during this? So, we received a lot of questions, and people really wanted to know how to conduct online examination. I mean, the questions are very basic because we haven't faced this thing before. So, if I can ask you, Yeah. Arthur, sir. Yeah, here I'll just add on one point that just as we have trainings for teachers and professors both in the form of FTPs and foundation courses, I think those things also have to um,
come up with a new curriculum of online training. Digital training is much needed amongst us also. So yeah, and I think this takes a little bit of time since it was so sudden. Um, Maybe UGC and in collaboration with universities, um, uh, they are coming up and they will come up with more solutions. That means digitalization and digital learning is one issue that we really should talk about, I think. And that is what you are suggesting, right? That means we are lacking behind this knowledge. So, what are your thoughts on this, Ashu sir? Where are we now? What has your experience been like? First of all, thanks for giving me the opportunity to speak. और इससे पहले मैं कुछ बोलूं, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी मैं यहाँ कह रहा हूं ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटर की तरह नहीं, एज एन इंडिविजुअल बात करूंगा। तो आपने एक बात बोली, मैं वहां से शुरू करता हूं। एजुकेशन इज गोइंग टू बिकम ऑनलाइन एजुकेशन इज गोइंग टू बिकम अ गेम चेंजर थिंग। मेरा क्वेश्चन है किसके लिए? कौन है जिनके लिए ये गेम चेंजर है और कौन है कि जिनके लिए गेम चेंजर नहीं है, या फिर अगर वो गेम चेंजर है तो उनको रिवर्स गियर की तरफ ले जाता है। एक रियल इंसिडेंट से अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने की तैयारी कर रहे थे तो हमारी एक दोस्त हैं, वो दिल्ली से बाहर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें लोगों के लिए फिर स्टीरियोटिपिकल हो जाती हैं। जब उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लेने का आइडिया प्रपोज किया तो बहुत सारे लोगों के लिए ये कंसर्न था, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, कि हम ऑनलाइन क्लासेस तो ले सकते हैं, पर क्या हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि मेल स्टूडेंट्स को फीमेल स्टूडेंट्स के और फीमेल स्टूडेंट्स को मेल स्टूडेंट्स के कांटेक्ट नंबर्स ना मिले या किसी भी तरीके की कांटेक्ट डिटेल्स ना मिले। मैं सोचता हूं कि आप लोग मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे डिस्कोर्स से बाहर है। हम जब भी ऑनलाइन एजुकेशन इमेजिन करते हैं तो हमारे लिए ये केवल डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल लिटरेसी, इन चीजों तक लिमिटेड होके रह जाता है। ये इससे कहीं ज्यादा है और कहीं बड़ा इशू है। इसमें एक और चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, आप सब लोगों ने आरक्षण मूवी देखी होगी, उसमें सैफ अली खान एक डायलॉग बोलता है कि हम बराबर में दौड़ेंगे पर हमको पहले वो स्टार्टिंग लाइन तक आने तो दो। जब हम वहां पहुंचेंगे ही नहीं तो फिर हम कैसे बराबर दौड़ सकते हैं? एग्जामिनेशंस सेम बैच से सेम क्वेश्चन पूछना मात्र नहीं है। एग्जामिनेशंस ये भी इंश्योर करता है कि हम जिन लोगों से एग्जामिनेशंस ले रहे हैं, क्या वो सेम एनवायरनमेंट में बैठ के एग्जाम्स दे रहे हैं? क्या हम उनको एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर पा रहे हैं? ये आज के डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बिगेस्ट कंसर्न है। क्यों? एग्जाम का मतलब है हम एटलीस्ट एक टेबल और एटलीस्ट एक चेयर प्रोवाइड करा पाए स्टूडेंट को, ताकि वो वहां बैठ के तसल्ली से अपना एग्जाम लिख सके। क्या हम
आज इस सिचुएशन में है, तो ये इंश्योर करना मुझे लगता है यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उसको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी डेटा इकट्ठा कर रही है। मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन हम सब लोगों के सामने ये चीज आज एक बड़े चैलेंज की तरह आती है जब हम पढ़ाते रहे हैं। जैसा शर्मिष्ठा मैडम ने बताया कि जब हम क्लासेस ले रहे थे तो हमारे सामने किस किस तरीके के चैलेंजेस आ रहे थे। ये एक 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 फ्यूचर के लिए हमको बताता है कि क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। और कम से कम हमारे यूनिवर्सिटी के लिए एजुकेशन इज़ नॉट अ गेम। जो चीज़ गेम है ही नहीं, उसे बदला कैसे जा सकता है? ओवर टू यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज। सो आपका कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था। बिल्कुल, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम ये कैसे इंश्योर कर पाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमारे पास अब तक रिसर्च अभी अभी तक जितनी गाइडलाइंस आई हैं, आपने एक एक ट्विटर के ट्रेंड का ज़िक्र किया। इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग ये ट्रेंड करा रहे थे, उनको डिजिटल एक्सेस है। वो इतने डिजिटली लिटरेट हैं कि वो ट्विटर पे डीयू अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ट्रेंड करा सकते हैं। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल लिटरेसी से कहीं बड़ी चीज़ है, जो शायद इग्नोर हो रही है। Right. So on this, I would like to ask Ms. Nidhi, ma'am, what is the scenario at private universities? How has your experience been like so far as you are teaching a creative subject? So is it already online? Do you use online methods? And what has been your methodology like? And how have you changed after this lockdown? Thank you, Vageshwari, for inviting us. Uh, and I would also like to mention that views expressed here are my personal views and have no bearing to my institute. Although my experience as an educator is associated with my institute, so I'll still talk about the experience, the same experience. So yeah, as you said, ki design education is a very creative field, and design education may it is important for educators and students to stress upon change. If things change and how we adapt to change, because design, you have to be one step ahead of rest of the world to be able to get innovative designs. So this situation is one similar situation where we are trying to adapt to change. And मैं आशु सर की बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि 100% correct or infrastructural provision is next to impossible in a very short span of time. This was lockdown was announced in just a day. No one had time to even prepare for infrastructural provisions. But I would say that I'm fortunate enough to be associated with an institution which was prepared in a way that they already had some of its syllabi covered through online mediums. So they had to scale up their operations. Also, they were visionary enough and they had shut operations of all their centers a week before the lockdown was announced by the government. And that 1 week they utilized to build up infrastructure for both students and faculty. For example, I did not have an internet connection at my home, but I got it in that 1 week. All the faculties were given training to how to scale up their operations of going from 20% online to 100% online. So again, I'll say that it is not 100% perfect, and there still are few students who might not be able to completely cope up with it, but 100% efforts are there, and I'm hoping that we'll be able to come out of this situation together.
From this, we can take out that private universities were, in fact, a little towards online education already. Shamishta, I would like to ask you, your subject is purely theoretical. So, have you seen any difference in the two modes, teaching in the virtual mode and earlier, like the classes we have already have had? And do you think it can be a replacement or at least a substitute to the physical sides? So, yes, Vageshwari, that's a very good question because when we say theoretical subject, of course, it is a very theoretical subject, but nothing happens only in the classrooms. And my colleagues here will agree with that. And when we share our different experiences, you'll get to know that it's not so education does not happen only in the classrooms, one thing, and most of it happens in humanities. At least most of it happens when you interact with each other. So that's one thing. So we cannot, of course, replace it. Virtual world is only one way to deal with this sudden situation, but I don't think this way it is going to be as flourishing as it was when we were actually connected with each other. And secondly, this raises another question of accessibility. आशु जी ने एक जो एग्जाम्पल दिया उससे काफी समझ में आता है कि जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं और उसमें जेंडर सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, और भी चीजें हैं जो शायद दिमाग में नहीं आती, फॉर एग्जांपल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जब हम बात करते हैं ऑफलाइन की, तो सबसे पहले तो हाउ अपग्रेडेड दैट कम्युनिटी इज। और जैसे आशु जी ने एक एग्जाम्पल शेयर किया, मैं श्योर ये एक ही एग्जाम्पल नहीं था उनके पास भी, और उसी तरह मेरे पास एक बहुत ही मेजर कंसर्न था एक स्टूडेंट का कि जब मैं फोन उठाती हूँ तो फोन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ it might sound a little funny to us, but it is a very grim situation because people who do have gadgets and who can use it online, उनसे सवाल किया जाता है कि ये फोन पे क्यों लगी रहती हो। So that's also an accessibility concern, and raising those questions, and उसी से एक collaborative understanding social sciences और humanities की बनकर आती है, और उसी से ही inclusivity बनकर आती है। Inclusion cannot be taught very exclusively. Thank you, ma'am, for bringing this point to accessibility. In fact, I'd like to ask Ashu sir. सर, आपको क्या लगता है कितना feasible या accessible है डिजिटलाइजेशन और डिजिटल लर्निंग, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं अभी, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए भी इतना मुश्किल है, बट अदरवाइज बाकी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे या टीचर्स जो हैं हमारे, उनके लिए कितना एक्सेसिबल या कितना फीजिबल है? देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जहां तक बात है तो मैं ये कहूंगा कि एक्सेसिबल नहीं, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जो ऑनलाइन शेयर की जा रही हैं यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइंस, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस हैं, एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी मैं बताना चाहता हूं कि ओपन बुक एग्जाम करते हुए आप हैंड रिटन कॉपीज को स्कैन करके अपलोड करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आप ऑनलाइन एग्जाम्स तो कंडक्ट करना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि आप अगर ऑनलाइन एग्जाम्स कर देंगे और टाइपिंग करने की परमिशन दे देंगे तो शायद स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो और कोई रीजन नहीं है इस बात के सपोर्ट में कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स तो कराएं, कंप्यूटर की हेल्प तो लें, पर उनको टाइपिंग करने की परमिशन ना दें, ऑप्शनल भी। तो इसलिए उन ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए स्क्राइब अरेंज करना, और ऐसा स्क्राइब अरेंज करना जिसको डिजिटल लिटरेसी भी हो,
और वो स्कैनिंग करके अपलोड करना भी जानता हो, ये बहुत सीरियस बात है। दूसरे टीचर्स की मैं बात करता हूँ। जब हम लोगों ने शुरू किया तो बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर्स हैं जो 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की ऑनलाइन मोड में कोप अप करने के लिए। हमारी जनरेशन अभी नई-नई जनरेशन है, हम लोग अभी कुछ भी सीख सकते हैं क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और टेक्नोलॉजी हमारे लिए डेली यूज़ का हिस्सा है, तो हमें कोई राइट, इश्यू नहीं लर्निंग हुआ। कम है। हाँ, हाँ, किसी किसी भी तरीके से कोई कोई दिक्कत नहीं हुई। बट उनके लिए क्या था कि मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करिए, तो वो सीख रहे हैं। उनके लिए एक डबल मेहनत हो गई, क्लासेस लेना प्लस ऑनलाइन क्लास लेने के बारे में सीखना। और ये इतनी सडन और एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी ने सोचा कि कम से कम लॉस हो स्टूडेंट्स का, तो यूनिवर्सिटी अपने पार्ट पे जो कर रही थी, वो उसने ठीक स्टेप लिया। लेकिन वो बाकी लोगों के लिए कैसे एज़ अ चैलेंज आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के साथ-साथ में हमको ये भी इंश्योर करना था कि हम कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करें, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें हमको मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो प्रमोशनल होगा, लेकिन कुछ ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं, जिन पे आप डेटा मैनेज कर सकते हैं कि आप कम डेटा खर्च करना चाहते हैं, आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं डेटा कंज़म्पशन को और कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनका स्टैंडर्ड डेटा हमेशा चलता है, उसको बदला नहीं जा सकता। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा ये सोचने के लिए कि कौन-सा मीडियम एडॉप्ट करें, जो बाकी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो ये सब सिचुएशंस जो है वो बाकी सारे टीचर्स के लिए भी थी और एग्ज़ाम में भी उनको प्रॉब्लम्स होंगे जिसको हम लोग चैलेंजेस की तरह लेते हैं। हम तो सीख लेते हैं लेकिन हमारे लिए स्टूडेंट्स और पूरी यूनिवर्सिटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो एग्ज़ाम ना दे पाए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के कारण और इसीलिए यूनिवर्सिटी डेटा इकट्ठा कर रही है इतना ज़्यादा। ओवर टू यू वागेश्वरी। जी आशु सर, मुझे आपकी ये वाली इनफैक्ट बात बहुत अच्छी लगी दैट वी आर स्टिल लर्निंग एंड इट गोज हैंड इन हैंड। स्टूडेंट्स आर लर्निंग एंड सो आर टीचर्स। एंड जैसे कि शमिष्ठा मैम ने बोला कि एफटीपी जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट कैन बी प्रूव वेरी एफिशिएंट फॉर दिस in training teachers about technology and upgrading their digital learning. So I think उसके दौरान अभी अभी जो चल रहा है सिनेरियो, that definitely shows that we at least have to have some basic knowledge about e-learning because आज हम कोरोना वायरस के इससे फंसे हैं and आगे क्या हो we really don't know, so we at least have to be prepared for the next pandemic. So from this, Nidhi ma'am, I'd like to ask you. In fact, I'd like you to share your experience as online mode आप लोग ने use किया है and you are done with your exams there in your academy. So आप लोग का क्या experience रहा और आपने किस तरीके से उसको use किया? I would say that design education is a different field from rest of the education world. So there are some benefits and some negatives that design education already had. For example, one very big difference is that I'm gathering from this discussion is that most of our students already were well versed with using digital technologies. उनका सारा काम कंप्यूटर पर ही होता था पहले भी। ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट माइट सफर, उनको फील्ड वर्क के लिए बाहर जाना होता था, केस स्टडीज के लिए बाहर जाना होता था, सामान देखने के लिए मटेरियल्स क्या है, मटेरियल स्टडीज के लिए दे हैड टू गो इन द फील्ड। सो देयर आर थिंग्स दैट
will suffer when they do not get chance to go out. But majority of their designing work was done on the softwares using computers. So a lot of our students were already well versed with using digital technologies, and unka presentation. So in design education, the way we evaluate a student's work is through a presentation that they give. They make a presentation of their work and they present it to a panel of jurors who judge their work. It's called a jury. It's like a discussion between a client and a designer. Designer ने design करके client को दिखाया और client feedback दे रहा है. It's like that. So students अपना काम करके एक presentation के format में वो पहले भी juror को दिखाते थे. तो हमारा challenge ये था कि juror अब सामने नहीं आ सकता है students के. So through video conferencing वो possible हो पाया. Of course there were still challenges. There were students जिनके पास video conferencing नहीं हो पाता था. तो उन students का काम रिकॉर्ड करके उन्होंने पहले से ही कहीं इस जगह पे जाकर जहाँ पर इंटरनेट है वहां जाकर उन्होंने भेज दिया फैकल्टी को और फैकल्टी ने वो काम ज्यूरर को प्रेजेंट कर दिया एंड द स्टूडेंट्स कुड कनेक्ट वाया फोन. सो ज्यूरर जो फीडबैक दे रहा है वो फोन पर सुन सकते थे एंड अपने पॉइंट्स क्वेश्चन आंसर्स फोन से प्रेजेंट कर सकते थे. So I would say that because they were already using a lot of digital modes, it was more convenient for them, and I really understand the problems that other universities might be facing, which were already not using so many of digital. Yeah, that's very fortunate of private institutes, Nidhi ji, I would say. But here, of course, we have to keep this in mind that public institutes have a very varied kind of population, and we do get people. In fact, it's a good ratio of underprivileged people coming, students coming from underprivileged families. So not just now, I mean, लीव अलोन दिस सिचुएशन, मुझे लगता है कि आगे भी हम लोग ये अगर कहें कि ऑनलाइन उनको बिल्कुल साल भर में हम तैयार कर पाएंगे, वो कर नहीं पाएंगे. सो आई थिंक वी विल हैव टू लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स. आई होप दिस सिचुएशन becomes better, if not back to normal. So I think online it's a far-fetched reality right now to reach out to those students who stay in remote areas and who stay in conditions, underprivileged conditions. And thirdly, we really need to keep this socio-cultural background in mind, that what is it we really need to aware the family members also, because when we are talking about infrastructure, as Shuji had well picked it up, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वाकई में हम नहीं सोच पाते हैं कि किस स्थिति में वो स्टूडेंट काम कर रहा है, किस स्थिति में वो एग्ज़ाम देगा, क्या वो एग्ज़ाम देने की कंडीशन में है, या उसके फैमिली मेम्बर से क्या रजामंदी थी उसके पढ़ने की, या फिर जैसे आशु जी ने कहा कि क्या उसके पास एक enough, would he even have a room to sit through the exam or a table also. और ये सब चीज़ें हमें अभी हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में तो थैंकफुली इमेजिन कर सकते हैं, बट पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनके साथ नहीं. और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आशु जी ने कही कि ये यूनिवर्सिटी का काम है और वो अपने काम पे लगी है, इतना हम आसान सोच रहे हैं वो है नहीं, और शायद इसीलिए बहुत सारे विवाद भी हैं और यूनिवर्सिटी काम भी कर रही है इसकी तरफ. एक चीज़ है जिसमें कि जो कि हमें शायद और ध्यान में रखनी होगी कि क्या हम थोड़ी और सहजता के साथ काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो चीज़ हमसे छूट गई हो वो हम उसे पकड़ पाए. जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि वो हमें थोड़ा सा पीछे होकर के फिर वापस आगे बढ़ना होगा. तो ये एक चीज़ है. आशु जी, हो सकता है कि आप और इस पे इफ यू कैन इलैबोरेट. बिल्कुल. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा एक स्टूडेंट है, मुझे उसकी याद आ गई. वो क्लासेस जब करता था पूरे अप्रैल और 15 मई के बाद तक, 17 या 18 मई को मैंने लास्ट क्लास ली,
और तब तक उसके यहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं थी, तो मेरी क्लास अटेंड करने के लिए मैं 10:30 से 12:30 क्लास लेता था। वो छत पे बैठ के मेरी क्लास अटेंड करता था। ये सिचुएशन है, आप वहाँ का पूरा टेम्परेचर और बाकी सारी चीज़ें सोचें, इमेजिन करें। और इसके साथ-साथ में एक और चीज़ है जो कहीं मैंने आज तक अनफॉर्च्यूनेटली किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ये डिस्कशन नहीं सुना, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। आज डिजिटल कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट हमारे लिए लग्ज़री नहीं है, ये हमारी नीड है। But still, we are paying 18% GST on that. हाँ, I mean, why? आप 1,000 रुपए का डेटा रिचार्ज कराइए, आपको 1180 रुपए का बिल आएगा। हम 18% जीएसटी इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी इंटरनेट जिसके सहारे पूरा देश चल रहा है आज, उस पे हम 18% जीएसटी पे कर रहे हैं और किसी भी ग्रुप ने इस बात की तरफ गवर्नमेंट का फोकस ही नहीं डाइवर्ट किया। ये मेरे लिए बहुत अजीब सिचुएशन है। क्यों ऐसा है कि अभी भी हम उसी गवर्नमेंट ने इतने मेजर्स ले लिए, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, लेकिन उसमें टेलीकम्युनिकेशन पे टैक्सेस के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट आप सब लोग जानते हैं कि जो करंट बजट आया, उसमें जो कम्युनिकेशन टूल्स थे, उस पे कस्टम ड्यूटी और बढ़ गई, जिससे प्राइसेस बढ़ गए। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है हमको थोड़ा ठहर के सोचना पड़ेगा। और ऐसे सिचुएशन में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर है कि जो रीजनल एरियाज़ में जो रूरल एरियाज़ में जो कनेक्टिविटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ की प्रॉब्लम उतनी नहीं है जितनी पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो हमको पूरे देश को दिमाग में रख के सोचना पड़ेगा और हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है और इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह ही लेते हुए मुझे लगता है हर किसी ने अपने हिस्से का बर्डन शेयर किया है। यूनिवर्सिटी ने काम करने की कोशिश की है लगातार, लेकिन एक भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस अपनी मर्ज़ी से मिस नहीं किए। जब उनको कनेक्टिविटी नहीं आई, तब भी उन्होंने कॉल करके बोला कि हम नहीं आ सकते क्योंकि इंटरनेट चला गया है। कई लोगों को मैंने पैरेलली टेलीफ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग पे कनेक्ट किया और बाकी लोगों के साथ मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे कनेक्टेड रहा। जैसा निधि मैडम बता रही थीं, ये सबके साथ में ये सिचुएशन आई। हम लोग भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हमारा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर काफ़ी टेक्नोलॉजी पे काम करता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उससे ये वर्ड यूज़ करना खराब होगा, लेकिन फिर भी दूसरा वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस है टेक्नोलॉजी के मामले में। बट स्टिल हमारे स्टूडेंट्स जहाँ से आते हैं, अगर वहीं कनेक्टिविटी नहीं हो, अगर उनके पास डिजिटल इक्विपमेंट्स ही नहीं है जिनसे वो कनेक्ट कर सकें, तो फिर ये चैलेंज बन जाता है क्योंकि हम उनको अपने सेंटर में तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा पाते हैं, लेकिन जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से निकल के चले जाएँगे, उनके पास वो जर्नल्स का एक्सेस खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस खत्म हो जाता है, जिसके लिए आज तक उनको लगता ही नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया कि यूनिवर्सिटी के सर्वर पे मेल आईडी बनाएँ ताकि उनका एक्सेस बना रहे। तो ये सब फॉलो करना स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की है, बट उसके बावजूद चैलेंज है और देखते हैं शायद हम जल्दी इससे ओवरकम कर पाएँगे। यहाँ पर मैं सॉरी तो यहाँ पर मैं भी एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। आशु जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने जो किया वो किया, बट स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से जो एफर्ट दिखाए, स्टूडेंट्स ने जो इंक्लिनेशन टुवर्ड्स देयर एजुकेशन दिखाया, वो सही में काबिल तारीफ था। एक इंसिडेंट हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट थी जो हर क्लास में टाइम पर आती थी,
इसीलिए वो ऑनलाइन क्लासेस में भी कम से कम 10 से 12 बार कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती थी। बट फिर फाइनली उसने यही कहा, जैसा आशु सर ने कहा कि शी वॉज सो वांटिंग टू लर्न, तो शी टुक आवर कॉल, तो वो सारा का सारा कॉल पर सुनती थी और फिर बाद में हमारी प्रेजेंटेशन देख लेती थी। सो शी रिलेटेड कि मैंने क्या सुना और क्या देखा, वो अपने आप रिलेट करती थी। तो स्टूडेंट्स ने जो एफर्ट किए यहाँ पर वो सीरियसली काबिले तारीफ हैं। उनके बिना कोई यूनिवर्सिटी, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। आई थिंक इफ द मॉडरेटर अलाउज, आशु जी की बात से एक जर्नल की बात आई थी, तो मुझे लगता है वहाँ से हम एक ओपन बुक की डिस्कशन हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास जर्नल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जब हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स को जर्नल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इस स्थिति में हम जब ओपन बुक एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो इट डजंट रियली फॉलो नेचुरली कि किन हम ओपन बुक एग्जाम तो दे रहे हैं। फर्स्टली वी रियली नीड टू, there has to be a specific sort of a training for open book exam. Given the curriculum and the pattern that we followed so far, and given the examination is a contract between the university and the student, जो अब तक दिया हुआ है, for example Delhi University में it's a 3-year offline exam, right? So students were prepared according to that. Of course it is a sudden situation and everybody has to tackle with their um, uh, flipped game. Now what I'm saying is कि वो सही है अगर हम उसको अगेन गेम पे, अगर उसको हम गेम ले लेते हैं तो वी कैन लीव देम अलोन, बट आशु जी ने सही कहा था ये गेम नहीं है, तो उस तरह हम लोग कंपेटिटर्स और प्लेयर्स की तरह नहीं देख सकते. इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स हैव द राइट काइंड ऑफ एक्सेस to the open book material, to the material used for open book evaluation, and the right kind of facilities and technologies to take the exam. और इसमें एक और बड़ा चैलेंज है जिसपे मैं चाहूंगा कि हम लोग जरूर बात करें. हम जब जर्नल्स की बात करते हैं, डिजिटल ओपन बुक ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा इग्नोर होती हैं अदर इंडियन लैंग्वेजेस, जिन पे कभी कोई डिस्कशन नहीं होता. कि जैसे ही हम ओपन बुक इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एग्जाम की बात करते हैं, वैसे ही जो लोग इंग्लिश जानते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल जाता है. और जो अदर लैंग्वेजेस में हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो कश्मीरी या और कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं, उनके एग्जाम्स का क्या? क्या उनके लिए भी उतने ही रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जितने रिसोर्सेज उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं? उनका उनका लैंग्वेज पे कमांड अच्छा है, वो सर्च करना जानते हैं. और हम सब जानते हैं कि जैसे ही हम इंटरनेट पे जाते हैं तो एक तरीके से मोनोपोलाइजेशन ऑफ अ लैंग्वेज एस्टैब्लिशेस देयर. तो वो जो मोनोपोली है, हम उसको, मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ किसी लैंग्वेज के, लेकिन मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर एजुकेशन गेम है भी तो लैंग्वेज उसे फेयर नहीं रहने देती. जी, मैम ने एक बहुत ज़रूरी पॉइंट लेके आई हैं यहाँ पर, दैट इज़ ओपन बुक एग्जामिनेशन. इनफैक्ट हमने फीडबैक कलेक्ट किए थे एंड हमको काफ़ी क्वेरीज आई थी इस पर. एंड अलॉन्ग विद दिस लोगों ने पूछा कि नोट्स को सर्कुलेट किए जाएं. एंड जैसे आपने कहा कि सब इंग्लिश टेक्स्ट ही अवेलेबल है मोस्टली, सो नॉट जस्ट अदर लैंग्वेजेस बट मैथ्स में भी पीपल वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो दे आस्क्ड अस कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको कैसे इनपुट किया जाए. सो आई थिंक सिचुएशन एट हैंड आती है तो हमें माइन्यूट प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है. एंड ओपन बुक पे भी काफ़ी क्वेश्चन है, सो नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स बट इट्स इवन न्यू फॉर द टीचर्स. सर आपके क्या इसमें सजेशंस हैं इस पे? ओपन बुक एग्जामिनेशन अगर अब होना ही है तो टीचर्स और स्टूडेंट्स क्या और कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए?
मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, आज तक मैंने कोई भी ऐसा क्लास टेस्ट नहीं लिया जो ओपन बुक ना हो। मैं हर बार ओपन बुक क्लास टेस्ट लेता हूं और मेरे स्टूडेंट्स इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ओपन बुक क्वेश्चन हमेशा कठिन होगा। मैं उन्हें टाइम देता हूं, ये मैंने अपने हिसाब से मॉडल बनाया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो बार-बार लोग पूछते थे क्लासरूम में बच्चे चीटिंग कर लेंगे, आप क्या करेंगे? चीटिंग कर लेंगे, आप देख नहीं सकते हैं, नकल करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना ऐसा एक सिस्टम बनाऊं जिसमें मैं बच्चों को नकल करने की छूट दे दूं। तो मैंने तब से डिस्कशन, ओपन बुक सब कुछ अलाउ कर दिया। आप बुक देखिए, लैपटॉप यूज कीजिए, कुछ भी जो आप कर सकते हैं, आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। मुझे 1 घंटे में आंसर चाहिए, दैट्स इट। अब इसको अगर हम पूरे यूनिवर्सिटी में ले जाएं तो डेफिनेटली लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमको भी अपना एक्सटर्नल एग्जाम, एंड टर्म एग्जाम अगर करना होता ओपन बुक में, तो हम भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मैं अपना क्लास टेस्ट ओपन बुक लेता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। बाकी लोगों के लिए ये बहुत अलग चीज है। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी से बहुत टाइम है, बाकी मेरे जो कलीग्स हैं वो ऐड करेंगे। अभी पहला टाइम है, अभी कम से कम 1 महीना तो है मिनिमम एग्जाम्स के लिए। अगर करंट सिचुएशन ही बनी रहती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह लें और तैयारी करना शुरू करें। हमारे पास यही रास्ता है। पढ़ना शुरू करें कैसे? एनालिसिस बेस्ड एजुकेशन पर फोकस करें। जो आप उनके टीचर्स ने पढ़ाया है, उसको बार-बार रिपीट करने की कोशिश करें। बहुत सारी किताबें पढ़ने से बेटर है 1 या 2 किताबों पर फोकस करें जो उनके टीचर्स ने बार-बार उनको पढ़ने के लिए बोली। ये करना एक बेहतर तरीका है, क्योंकि तभी उनको पता होगा कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बुक के किस पोर्शन से आ रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है जो पूछी जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ओपन बुक जब हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसमें एनालिसिस बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब वो चीज़ ओपिनियन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड होती है, तो रटना तो भूल जाना होता है। रट सकते हैं, लेकिन रटने पे काम मेहनत क्यों करें? अगर हमको ओपन बुक दिया जा रहा है तो। उससे ज़्यादा अच्छा है हम चीज़ों को रिपीट करें और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएँ। और दूसरी मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा, टाइम बहुत कम मिलेगा, 2 घंटा। बहुत ज़्यादा टाइम सर्च करने में ना खर्च करें। मेरी बात पे भरोसा रखें, गूगल सर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के लिए मैं कह सकता हूँ। जितने दिन स्टूडेंट्स मेहनत करेंगे अपनी तैयारी करने में, उतने ही दिन टीचर्स मेहनत करते हैं पेपर बनाने के लिए। और गूगल से उनकी दुश्मनी नहीं है कि इस टीचर्स को सर्च करने पे नहीं दिखाता है। तो आप ये भूल जाइए कि जो क्वेश्चन आएगा, उसको आप सर्च करेंगे और ईज़िली मिल जाएगा। है सब कुछ, लेकिन आपको मिलते-मिलते टाइम निकल जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने और उन्हीं पे भरोसा करिए। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लास्ट में काम आएगी। तो बाकी मेरे कोई अगर कलीग्स ऐड करना चाहें इसमें कुछ? ये आशु जी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका निकाला एक बच्चों को और स्टूडेंट्स को अपनी खुद की ओपिनियन क्रिएट करने का। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था एजुकेशन का, दैट नॉलेज वाज इक्वेटेड टू इंफॉर्मेशन। कोई कितनी इंफॉर्मेशन अपने पेपर में लिख सकता है, उसको उतना ज्ञानवर्धक माना जाता था, which doesn't make any sense.
आप कितनी 50 बुक कोई रट सकता है, बट अगर आपको उस इंफॉर्मेशन का क्या करना है वो नहीं पता, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वेस्ट है। तो इंफॉर्मेशन जो बुक्स में है, आशु जी ने ये तरीका निकाला कि उस इंफॉर्मेशन का स्टूडेंट्स अपना एनालिसिस करें और उसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो खोज के निकालें, और वो अगर सवाल ही वैसा आए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो इन माय ओपिनियन there are many challenges to it, as Ashu sir already mentioned, and there might be more which can come. But to start with, I think this can become a transformation in education, which was more bent towards information cramming, and now it can bend towards innovation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस इमरजेंसी सिचुएशन को क्या हम अपने जो टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं उनके बदलाव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम वो एनालिसिस करने की एबिलिटी पैदा कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, हम सब के लिए भी ये एक लर्निंग फेज है। मुझे लगता नहीं है कि हम सब में से किसी ने भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हम डिजिटल कहते हैं, ऑनलाइन कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन इन सब चीजों पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने कभी किया है लाइफ में अब तक, जब हमारे सामने ऐसा पूरा टाइम खुल गया हो और पूरा का पूरा सेमेस्टर एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि बिफोर लॉकडाउन तो हमने क्लासेस ही की और उसके बाद मिड सेमेस्टर ब्रेक हो गया मेरी यूनिवर्सिटी में, और निधि मैडम के यहाँ भी लॉकडाउन के पहले कुछ एग्जाम्स हुए जैसे वो बता रही हैं। तो हम सोच ही नहीं रहे थे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ा भी रहे थे वो भी ये नहीं सोच रहे थे कि ऑनलाइन का भी एग्जाम्स कराने की भी जरूरत पड़ सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए तो नया था ही, टीचर्स के लिए भी नया था, और सब एक जगह पे आए। तो लेकिन एक और चीज है जिसको मुझे लगता है कि मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स ध्यान में रखें ओपन बुक एग्जाम देते समय, कि आप क्वेश्चन को बार-बार पढ़ें। आंसर कहीं क्वेश्चन के बीच होगा। ओपन बुक एग्जाम की ये खासियत होती है कि जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे रादर देन गूगल सर्च के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो वाकई में आपसे क्या जानना चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आप कम लिखिए, लेकिन क्वेश्चन को बार-बार पढ़ के जो पूछा जा रहा है वो ही लिखने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम अगर कम मिलता है, मान लीजिए कि 2 घंटा टाइम है और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं या फिर ऐसा ही कुछ, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने से बेटर है कि आप क्वेश्चन को बार-बार पढ़ें और अच्छा आंसर दें, जो आपके ओपिनियन पे बेस्ड हो। मुझे लगता है ये तरीका सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के लिए तो काफ़ी कारगर है, क्योंकि आशु जी आप भी इस बात से ताल्लुक़ रखते होंगे जब आप हम इवैल्यूएशन पहले भी करते थे, क्योंकि सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटीज़ में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग दिया करते हैं, और उसमें जब हमारे पास 100, 200 और कभी-कभार 300, 350 भी स्क्रिप्ट्स होती हैं इवैल्यूएट करने के लिए, तो उसमें जो एक गूगल लैंग्वेज होती है वो बहुत ही अस्वाभाविक तरीके से, वेरी अननेचुरल तरीके से वो नज़र आती है, और वो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली, मतलब वो आंसर शीट्स ऑटोमेटिकली कम अटेंशन पा पाती हैं, इनफैक्ट नहीं पा पाती हैं बनिस्बत उनके जो कि खुद का एनालिसिस जो मांगा गया होता है और जो क्वेश्चन के बीच में ही होता है उस तरीके से आंसर करते हैं। तो या बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही है, मुझे लगता है कि बार-बार पढ़िए, सोचिए क्या पूछा जा रहा है, और अगर आपको सर्च करना है, तो आप क्या सर्च करें? मुझे लगता है ये भी हम थोड़ा-सा डिस्कस कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन सर्च करने की बजाय
आप कीवर्ड्स सर्च करें। अगर आप ऑनलाइन हेल्प ले ही रहे हैं इंटरनेट की, तो आप इंटरनेट की हेल्प उन चीजों के लिए लें जो आप नहीं जानते। कोई ऐसा टर्म आ गया जो आपको नहीं पता, आप वो टर्म सर्च करें। पूरा क्वेश्चन सर्च करने से अच्छा होगा, और तब शायद आप आंसर के ज्यादा क्लोज पहुंचेंगे। अगर आप पूरा क्वेश्चन सर्च करेंगे तो कंफ्यूजन होंगे। आप पहले कीवर्ड्स हाईलाइट कर लें, कितने कीवर्ड्स हो सकते हैं क्वेश्चन में, और आप केवल उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च करें। उन कीवर्ड्स को सर्च करने से आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। फिर से कहूंगा, कॉपी पेस्ट ना करें। अगर आप हैंड रिटन भी लिख रहे हैं, तो भी अगर आप हाथ से भी लिख देंगे ऑनलाइन अवेलेबल किसी चीज को, तो वो तुरंत मिल जाती है। वो बहुत इजीली पता चल जाता है। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। 2-3 सेंटेंसेस पढ़ने से पता चल जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है। हाँ, और ये सही बात है कि गूगल सर्च करना इज नॉट बैड, और कीवर्ड्स ढूंढिए और उससे अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंसिंग दीजिए, वो एक सही चीज है। और बनिस्बत इसके कि आप उसे अपना आंसर बताकर वहाँ कॉपी कीजिए, उसके आप उसको रेफरेंस दे करके अपना ओपिनियन जरूर लिखें। यहाँ एक बड़ी बात है, क्योंकि जैसे इंस्टीट्यूट्स में और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में खासकर वी हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जो प्लेजरिज्म ढूंढ लेते हैं, और अब तो दी सॉफ्टवेयर्स आर इवन स्मार्टर टू कैच द हैंड राइटिंग हैंड रिटन असाइनमेंट्स एंड वर्क एज वेल। सो वो इसलिए वो गलती करना मुझे लगता है इज नॉट रेकमेंडेबल एट ऑल। क्योंकि जब ओपन बुक एग्जाम्स ऑनलाइन की बात हो रही है तो इवैल्यूएशन में भी उसी तरीके का डिजिटल इवैल्यूएशन इस्तेमाल किया जाएगा। जी बिल्कुल शर्मिष्ठा जी, we already have plagiarism softwares which we use and they are so advanced that they can even find out images, photographs को morphed images भी वो पकड़ लेते हैं सॉफ्टवेयर, एक वर्ड 2 वर्ड भी पकड़ लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत ही ध्यान में रखना होगा कि अगर वो थोड़ा भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधा प्लेजरिज्म में जा सकता है, और दैट कैन बी रियली डेट्रीमेंटल फॉर देयर एग्जामिनेशन। बिल्कुल, ओपन बुक एग्जाम हमें छूट तो देता है कि आप कोटेशंस दे सकें, लेकिन जिसका उधार लें उसका नाम जरूर बताना चाहिए। ये एक बहुत एथिकल चीज है, जिसको हर कोई ध्यान में रखे कि हम उनके वर्ड्स ले लें लेकिन उनका नाम न लें। रेफरेंसेस ओपन बुक एग्जाम में आप इजीली दे सकते हैं, तो रेफर कीजिए, बिल्कुल रेफर कीजिए किसी भी किताब को। जितनी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, जितने वेबसाइट्स आप रेफर कर सकते हैं, जरूर करें। बट लिंक कहीं से भी आ रहा है तो वो मेंशन करें, रेफरेंसेस दीजिए प्रॉपर। और अगर आप विकिपीडिया से कोई चीज ले रहे हैं तो डेट जरूर डालें, क्योंकि डेली उसको एडिट किया जा सकता है या कोई ना कोई करता है। तो आप जो चीज कह रहे थे, हो सकता है वो बाद में अवेलेबल ना हो, वो एडिट हो जाए। इसलिए जब भी आप विकिपीडिया से कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो विकिपीडिया की रेफरेंस को जिस तरीके से बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं, आपको आदत होगी, उसके साथ में डेट जरूर मेंशन करें कि इस पर्टिकुलर डेट को हमने विकिपीडिया से ये चीज ली है। Sorry, I want to butt in here. Wikipedia is not a valid source. तो हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को कि विकिपीडिया में सोर्सेज लिखे होते हैं और उन सोर्सेज को आप रेफर कीजिए। सो विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसी और वेबसाइट से ली गई होती है। सो आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल निधि, बस ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का कोई पेपर है, तो कई बार स्टूडेंट्स डेट्स चेक करने के लिए विकिपीडिया का यूज करते हैं,
या प्लेसेस चेक करने के लिए विकिपीडिया का लोग यूज करते हैं कि ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इस सेंस में वो विकिपीडिया यूज कर सकते हैं। अदरवाइज रिलायबिलिटी तो एक कंसर्न हमेशा से थी, है और शायद फ्यूचर में भी रहे। So to conclude, I would like to say that these are very difficult times, not only for the education and students, it's a difficult time for the entire humanity. But viewing these times, I would like to still tell students and all educational stakeholders that change is the only constant. And Darwin gave us the theory of survival of the fittest. I would like to change that a little bit and say that perhaps in the future it would be survival of the fastest. The people who would be quick to adapt to changes, they'll be able to survive the best in the changing scenarios. So agile is the keyword to good survival. Yeah. Thank you. Right. Thank you, Ms. Nidhi, for concluding this for us. So, if I try to collate some points from our discussion today, foremost is that we need to be flexible for examination and evaluation as far as we can, considering we have socio-cultural disparities that are present in our society. Thus, we do not have adequate infrastructure and same environment as well, as Mr. Ashu pointed out. And the situation is quite challenging, but this is not a permanent situation, but a sudden and a challenging one. As Shamishna ma'am said, faculty development programs can really help in here. Thus, thank you so much for explaining our viewers how can we conduct open book examination, what the teachers as well as students need to take care while preparing for an open book examination. And from these points, I believe now faculties sure can help the students as well, how they need to prepare for this. Also, we learned from your experience how faculties can deal with the sudden online challenges, being in different university setups as well. And very importantly, that we have understood is we need to adapt, but smartly as well as efficiently. So I thank all my panelists here, Ms. Sharmishta, Mr. Ashu, and Ms. Nidhi, for bringing our attention to minute things that were being overlooked otherwise, and for providing us with possible solutions. Have a good day.